right? Magnetic moment of a revolving electron and Bohr magnetron, right? Magnetic moment magnetic moment of a revolving electron of revolving revolving electron and Bohr magnetron and Bohr magnetron. Okay, students. But let's see. There is a circular coil. Okay, जिसपे मान के चलो करंट ऐसे जा रहा है. Current is going like this. So we'll be having magnetic field. Yes or no? And let the electron is revolving. This is the axis. Okay. We'll see in which direction magnetic field and what is magnetic moment. And let the electron is moving here, which is having charge Z and mass M, and the radius is let R from the axis of rotation. And let it is moving with a velocity V. Yes or no? So let's consider an electron that is revolving around a circle of radius R with a velocity V. The charge of the electron is Z and its mass is M, जो कि constant है. Friends, the time period of the electron's orbit, right? The time period, right? The time period of electrons orbit, the time period of electrons orbit is टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. जब ये एक चक्कर लगाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर ना ऑफ द सर्कल. बाय v वेलोसिटी में जा रहा था. सो अभी टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई आर बाय v. करेक्ट? यस स्टूडेंट. Yes, sir. द करंट I ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? द करंट I, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए कुछ करंट बिल्डअप हो रहा है, राइट? द करंट I due to the motion of the electron, due to the motion of the electron, due to the motion of electron. So it is current का क्या फॉर्मूला होता है? dq by dt. yes or no? करंट इज क्या है? चार्ज बाय टाइम. करेक्ट? और यहाँ पर चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस सी. और टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई आर बाय वी. करेक्ट? तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ई वी बाय 2 पाई आर. करेक्ट? फ्रेंड, करंट is in the, हमेशा करंट क्या होता है? करंट always flows opposite direction to that of the flow of electrons. yes or no? और अगर इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जाए तो डेफिनेटली करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है? So एम्पियर सर्किट लॉ जो कहता है the magnetic moment due to a current loop enclosed by an area is given by what? Right, students? The magnetic moment, right? The magnetic moment due to a circular loop, the magnetic moment due to a circular loop, magnetic moment due to a circular loop enclosing an area A, enclosing an area A is given by student, let the symbol is mu, that is equal to IA. Okay, how much current is flowing and what is the area enclosed. And from here, let the magnetic moment is in this direction mu. Yes or no? Angular momentum भी निकालेंगे हम उसी पे आते हैं. Just a minute, just write it down. Students, तो हमें यहाँ पर देखें कि mu is equal to I into A. चलो I का वैल्यू पुट करते हैं. So if I put the value of I and A, and you know I कितना है? Students, I just हम निकाले कि minus EV by 2 pi r. Correct? और area of that circle is how much? That is pi r square. Correct? तो अगर हम अभी mu निकाले, so mu is equal to how much? Minus EV by 2 pi r into pi r square. करेक्ट? ये छोटा r है क्योंकि रेडियस r लिए स्मॉल r, pi r square. सो जब पाई पाई आर आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस ईवी आर बाय 2. ओके, यू गॉट इट?
what is the magnetic moment? That is minus EVR by 2. Correct. Student, let's multiply this expression by mass of the electron. So एक काम करते हैं, E is equal to कितना था? माइनस E था, VR था, ठीक है, बाई 2 था. मैंने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस में से लिख सकता हूँ माइनस E बाई 2 Me इंटू Me इंटू VR, ऐसे लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. ये सब. एंड स्टूडेंट, आप लोगों को पता है एंगुलर मोमेंटम क्या है? LVR ना, MVR ना, हम पढ़े थे. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम that is equal to L. Yes, so linear momentum is equal to mv and angular momentum is equal to radius times. So angular momentum L is equal to, students, we know m v r. So ये जो m आ गया, v आ गया, r आ गया, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं. तो फाइनली आई कैन राइट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, so we can write magnetic moment is equal to minus E by 2 times of me into angular momentum. Correct. स्टूडेंट, ये जो एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, उसका डायरेक्शन? एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड रूल ना, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी एंड द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इसीलिए जो नेगेटिव साइन है ना, वो दिखाता, ये बताता है कि टू क्वांटिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इट्स शोन इन द फिगर. वेलोसिटी एक की तरफ जा रहा है और करंट एक की तरफ जा रहा है, ठीक है. सो राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम इस तरह अपवर्ड की तरफ हो रहा है. अगर अगर जिस जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है तो उस तरफ हो रहा है मैग्नेटिक, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम. तो स्टूडेंट, अगर वेक्टर में उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं मैग्नेटिक मोमेंट को, सो वी कैन राइट मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर म्यू इज इक्वल टू माइनस E by 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एंगुलर मोमेंटम. ये सब स्टूडेंट, ये जो है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज ए मैग्नेटिक मोमेंट is only dependent upon the angular momentum. तो इसीलिए देखो, ये E भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है. तो इसलिए एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? एंगुलर मोमेंटम. तो यही वजह है, दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना. और जब बॉडी, जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है एंगुलर ऑर्बिट पे, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. कहीं कहीं पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को लिख देते हैं, कहीं कहीं पे हम मैग्नेटिक इसको एंगुलर मोमेंटम को लिख देते हैं. तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कहीं से भी अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये भी सही है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए. स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंट मूव करता है एक ऑर्बिट पे, तो स्टूडेंट उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो कंजर्व, मतलब ऐसा नील्स बोर ने बताए थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, मतलब कंजर्व. ठीक है. तो राइट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ऐसा नील्स बोर ने बताए थे. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. ऐसा किसने बताया था? नील्स बोर ने बताए थे. दैट मींस उसका फार्मूला जो है, दैट इज L इज इक्वल टू NH by 2 pi. NH by 2 pi. ठीक है. उसका जो फार्मूला है, उसको क्या लिया था उसने? NH by 2 pi. ठीक है. अगर ऑर्बिट के हिसाब से देखें तो N इज इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है. ठीक है. और N क्या है स्टूडेंट? N इज द ऑर्बिट ऑफ क्वांटम नंबर, राइट? N is the orbit quantum number, orbit quantum number. ठीक है. And H is Planck's constant. H is Planck's constant. ठीक है. फ्रेंड्स, अगर हम देखें म्यू की जगह में, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N. N की जगह पे N रहा. L की जगह में क्या डालूंगा? माइनस L बाय 2 Me. एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? H by 2 pi ना. करेक्ट. तो फाइनली अगर उसको रिप्लेस कर दूं, म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? N माइनस N. ठीक है. EH बाय 2 into 2 कितना हो गया? 4 pi Me. ठीक है. जस्ट राइट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू N into E into H, Planck's constant, by 4 A pi A mass of electron. Just write. Then we'll go to next. Friends, the quantity that multiplies with N, ये जो quantity है ना, EH by 4 pi Me. ठीक है. इस quantity को क्या बोलते हैं पता है?
इसका नाम हम दे दिए म्यू बी, उस कांस्टेंट के बारे में लिख दिए म्यू बी, दैट इज ई एच बाय 4 पाई एम ई। अगर हम ई का वैल्यू डाल दिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिए, 4 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो स्टूडेंट इट विल कम एज 9.27 into 10 to the power minus 27 जूल पर टेस्ला। ओके, एंड स्टूडेंट ये जो है ना, दैट इज नोन एज दैट इज ए कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। दैट कांस्टेंट इज नोन एज बोर, पी ओ एच एन, बोर मैग्नेट्रॉन, एम ए जी एन ई पी ओ एन, म्यू बी इज बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, और इस तरह मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, द बोर मैग्नेट्रॉन इज वेरी मच यूज्ड स्टूडेंट्स इन मैग्नेटिक मोमेंट एट द एटॉमिक स्केल। एंड ये जो एक्सप्रेशन हम निकाले ना, दैट इज टू समहाउ इट इज गुड फॉर एटम्स लाइक हाइड्रोजन। और हम नहीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सारे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व रियली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब is obtained by virtue of being trapped in the nuclei। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई में ट्रैप हो जाता है, मतलब एक ऑर्बिट में घूमता है, दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द स्पिन एंड द ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटम कंबाइन वेक्टोरियली इन अ सिंपल प्रेसिड्यू, सिंपल, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, so magnetic moment is obtained by the combination of orbital and spin magnetic moments determine the magnetic properties of the material। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,